السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن آن 365. آئی ہوپ آپ بھی اتنے ہی اچھے اور خوشگوار موڈ میں ہو جتنے میں اور زہیب ہوتے ہیں ایوری فرائیڈے. کیوں ہوتے ہیں زہیب آپ ایوری فرائیڈے اتنے خوشگوار موڈ میں؟ بتایا ہے آپ کو, بہت ان کو پتا ہے کہ کیوں ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ ذرا ایک دو دن چھٹی مل جاتی ہے, 2 دن کی چھٹی, اور پھر ذرا لائف بہت چینج ہو گئی ہے. 10 بجے سونا پڑتا ہے, صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے. 10 بجے سونا نہیں, نیند آ جاتی ہے. ہاں, یہ آپ جاگنا whether you چاہیں, like it or not, ہے نا. تو بھائی آج کی اچھی بات سے شروع کریں. اچھی بات سے شروع کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. آواز کیوں رہے آپ کو نہیں اچھی لگی ہے یہ اچھی بات؟ میں بتاتی ہوں کتنی اچھی بات ہم کرنے والے ہیں. آج کی اچھی بات ہے جی کہ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں یا کسی کے لیے بھلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ اس انسان کے لیے نہیں کر رہے, مطلب دیٹس اے سپرفیشل لیئر. آپ اصل میں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی اپروول کے لیے کر رہے ہیں. سو جو کانشینشیس انسان ہوتا ہے وہ اس چیز سے نہیں افیکٹ ہوتا کہ آپ نے شکر کیا میرا یا نہیں, یا میں, ہاں یعنی آپ نے تھینکس کیا یا نہیں, آپ کی انٹینٹ کیا ہے. اگر پازیٹیو ہے, آپ کا ضمیر یعنی کانشیس آپ کا کلیئر ہے, تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, اچھا کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ یعنی آخر میں ہیئر آفٹر بھی بالکل آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے اپنی نیت اور اپنی جو انٹینٹ جس کے تحت آپ نے وہ کام کیا, کیونکہ آپ وہاں بھی اور یہاں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ. اٹس اے گریٹ انویسٹمنٹ. اور دیکھیں اگر آپ مطمئن ہیں, اور مطمئن آپ تبھی ہوتے ہیں جب آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا, اندر سے بہتری کے لیے کام ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ بہتری کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ حالات و واقعات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ نہیں اس طرح اس کا رزلٹ پھر آتا ہے. اس پہ وہ آتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال. تو یہ ہے لیکن وہ دریا اوپر ہے, وہ آپ نیکی کریں گے وہ کاؤنٹ ہو وہ رہا ہے, سب جو ہے نا ہو رہا ہے, رجسٹر ہو رہی ہے ہر چیز. آج کا ورڈ کیا ہے؟ آج کا ورڈ کیا ہے؟ ہاں, ہم نے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ورڈ ہم ضرور ریمائنڈ کرائیں ایک دوسرے کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی. تو جی آج کا ورڈ جو ہے, آج کا ورڈ ہے شکر. شکر, کنٹینٹمنٹ بھی کہتے ہیں سر. بالکل کنٹینٹ. ہاں, یعنی شکر آپ کریں, اور جو بھی جس حال میں بھی اللہ آپ کو رکھ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ دیکھیں اپنے سے نیچے لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس کی ویلیو کیا ہے, کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اینڈ یو نو وین یو ویک اپ ان دی مارننگ اور آپ شکر سے شروع کریں, آپ کا پورا دن بڑا سیٹسفائیڈ گزرتا ہے. زبردست جی, بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں. یہ اچھی بات ہو اب گئی. ہم ٹاپ نیوز کی طرف چلتے ہیں ذرا. ٹاپ نیوز ہماری یہ ہے, سب سے پہلی خبر کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. بڑا ہی ایک اہم دورہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ ہے, اور آج تو جنرل اسمبلی سے خطاب میں وہ پاکستان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے, مختلف ایشوز پر وہ بات کریں گے, پاکستان کا موقف سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ انتہائی اہم ملاقاتیں. دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں جو آج کرنے جا رہے ہیں مسئلہ فلسطین اور کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے. وہ عالمی امن, سلامتی, فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت بھی کریں گے. اور وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کے لیے فوری اقدامات اور اسلام فوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف فوری اقدامات کی اپیل کریں گے. اور آج کے خطاب سے پہلے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ برطانیہ کی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے, پھر آپ دیکھیں فلسطین کے صدر میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. امریکہ میں جو بزنس فورم ہے اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, کاروباری شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے. اکنامک, پولیٹیکل اینڈ یو نو دا اولڈ سیٹائر آف دا کنٹری, یہ ملاقاتیں بہت ضروری ہیں. اور یہ تو ہمارے دوست ملک کہتے ہیں جنہیں ٹرکی ہے, چائنا ہے. سو آئی ہوپ دس از اے فروٹفل میٹنگ فار پاکستان. جی, تو آج کا خطاب سب کی نظریں اس پر جڑی ہوئی ہیں, جمی ہوئی ہیں کہ آج وزیر اعظم کیا خطاب کرتے ہیں اور ان کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, کن کن چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں, تھوڑا ہم نے بتا ہی دیا. آگے بڑھتے ہیں. ہماری دوسری ٹاپ سٹوری ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کر, اچھا یہ ایک بڑا ایک معمہ سا بن گیا اب. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتا ہے یا پھر الیکشن کمیشن وہ جو پارلیمنٹ میں قانون سازی کی گئی ہے اس کے مطابق چلتا ہے. تو ایک بار پھر الیکشن کمیشن نے یہ وضاحت مانگی ہے, گزارش کی ہے, درخواست کی ہے کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں چل رہا, ہم کنفیوز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو الیکشن ترمیمی ایکٹ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے پھر انکار کر دیا انہوں نے, اور ایک بار پھر وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. موقف اپنایا کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا. یعنی کہ جب وضاحت آئی سپریم کورٹ کی کہ ہمارے فیصلے پر آپ کو عمل کرنا ہے, اس وقت یہ پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہوئی تھی, تو صورتحال بالکل مختلف تھی. لیکن اب جب کہ قانون سازی ہو گئی ہے
اور ہمیں پارلیمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری قانون سازی کے مطابق عمل کریں. تو اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کرنا ہے. تو ایک بار پھر ہمیں بتائیے, گائیڈ کریں کہ کیا کر سکتے ہیں. اس پہ ہم آگے بھی شو میں بات کریں گے. جی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ان چیزوں کا فیصلہ جب ہوگا تو اس سے ایک صورتحال بالکل سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اسی لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کرنے کے لیے کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہر صورت میں, یعنی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس پر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوائڈ کر سکیں. تو یہ ہماری دوسری ٹاپ سٹوری. تیسری ٹاپ سٹوری ہماری سپریم کورٹ کے اندر کی ہی کچھ کہانی چل رہی ہے اور جواب الجواب ہو رہا ہے. ایک طرف سے خط لکھا جاتا ہے, خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا اور اس کے بعد ان کا جواب دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, اور انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت پر کمیٹی سے نکالا. جسٹس منیب اختر کو سینئر جج سے رویہ انتہائی سخت تھا جسٹس منیب اختر کا, اسی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی تھی اس سے جسٹس منیب اختر کو نکالا. یہ چیف جسٹس اپنے جواب میں کہہ رہے ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منصور اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کریں. یعنی یہ سوال کرنے پر ہی آپ حق بجانب نہیں ہیں, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ نے اس جج کو کیوں نکالا, کیسے نکالا اور اس جج کو کیوں شامل کیا. میں آپ کو وجوہات بتانے کا پابند نہیں تھا, یہ بھی چیف جسٹس نے کہا. مزید کہا کہ جسٹس منیب اختر نے ججز میں تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت, یعنی جب یہ قانون بنا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایک کمیٹی بنائی گئی, ایک چیف جسٹس سے اختیار لیا گیا, تو چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی اور وہ اس کمیٹی کو بنانے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے تھے. جسٹس منیب اس سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی تعطیلات پر گئے اور گرمیوں کی انہوں نے تعطیلات لی. وہ تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے. تو یہ ساری وجوہات چیف جسٹس نے بتائی کہ یہ اس وجہ سے ہم نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بتا دی وجوہات لیکن میں پابند نہیں ہوں کسی کو بتانے کا. بالکل. تو جناب یہ ہماری تیسری ٹاپ سٹوری. بالکل جی. اب ہم تھوڑی کرکٹ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں, باکسنگ کی طرف. اچھا, جیسے جب بھی پاک انڈیا لکھا ہوا ہوتا ہے یا کچھ ہم پاک انڈیا کی کرکٹ پہ دماغ جاتا ہے. پاکستان ورسز انڈیا پروفیشنل باکسنگ کمپٹیشن. پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے 1 منٹ 5 سیکنڈز میں ہی جیت لیا ہے یہ پورا کمپٹیشن. زیادہ وقت نہیں لیا. 1 منٹ 5 سیکنڈز. اوکے. تھائی لینڈ میں انڈین باکسر تھلک سلوام عثمان وزیر کے 2 پنچز کے بعد رنگ میں گر گئے, جس کے بعد ٹیکنیکل بیسس پر عثمان وزیر جیت گئے. عثمان وزیر کی یہ کنٹینیوس 14th وکٹری ہے. 14th. تو عثمان وزیر تو کسی کے I think he's the next محمد علی. ہاں جی ہے نا, لگ رہا ہے ایسے. اور دیکھیں کیا 1 منٹ اور, بالکل 1 منٹ اور کچھ سیکنڈز, 1 منٹ 5 سیکنڈ. 5 سیکنڈز میں مطلب اپوننٹ کو نالج اسے کہتے ہیں آگ کے چھا جانا. یہ مائک ٹائسن والا کچھ میرا خیال ہے ان کی بھی حکمت عملی ہے. مائک ٹائسن کا بھی یہی تھا کہ بس آئے اور جا کے 2-3-4 پنچز لگائے اور ختم کی کہانی. ہاں, اب ایک وہ گولڈ پنچ ہے اور ایک یہ گولڈ پنچ ہے جو ہمیں پڑ رہا ہے. گولڈ کی پرائسز جو ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں گولڈ ریٹس میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں سونے کی قیمت فی تولہ 1500 روپے انکریز ہو گئی ہے. آل پاکستان جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق گولڈ اب 2,77,000 2,77,000 فی تولہ میں فروخت ہو رہا ہے. 10 گرامز گولڈ پرائز 2,37,000 2,37,000 ہو گئی ہے. او مائی گاڈ. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ ریٹس $2,665 پر آؤنس ہے. اس سے بھی زیادہ آپ نے وہ جو ہمارے ساتھ تھے تو جو آپ کہہ رہے تھے وہ برتھڈے پہ دینا ہے آپ کو, اس کا کیا ہوگا؟ سوچ ہی رہے, سوچ ہی رہے, سوچنے میں کیا حرج ہے, سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے شو کی جب فرسٹ ایئر اینیورسری ہوگی نا تو زہیب سب کو 1-1 تولہ سونا دے. جب میری سیلری 100 ٹائمز بڑھ جائے گی انشاءاللہ ہم اس دن کا ویٹ کریں گے.
ایسے ہی ہے, بہت دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی جناب. سیاست کی ہم بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی بڑی ایکٹیو ہے اور میر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور وہ کمیٹی اب یہ آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے اس میں کیا شقیں شامل کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, ان کو دیکھا جا رہا ہے. سب کو ایک پیج پر لانے کی کوشش پیپلز پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام لازمی ہے, وہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے کر دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے, اس پر بھی موقف واضح کیا کہ یہ جو سویلینز کا ٹرائل ملٹری عدالتوں میں, اس پر بھی چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ اس کے بھی ہم مخالف ہے. تو یہ دو چیزیں. تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ نوید صاحب نے وقت دیا. السلام علیکم نوید صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر سب سے پہلے یہ بتائیں, الیکشن کمیشن نے الیکشن ترمیم ایکٹ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے پھر انکار کر دیا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بھائی دیکھیں, یہ تو ایک لیگل کویسچن ہے جس پہ فیصلہ یہ ہونا ہے, کیونکہ ایک طرف سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ سیٹس جو ہیں وہ ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو. دوسری طرف سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس بعد, اس میں پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں اس لیے نہیں ملتی کہ یہ کیونکہ جو لوگ جنہوں نے فرسٹ آف آل ایون کورٹ میں بھی جن لوگوں نے جا کے کہا تھا وہ ایس آئی سی کی طرف سے تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایس آئی سی کو ملیں گے, کہ لوگوں نے جو سائن کر کے بھی دی ہے ایک سگنیفیکنٹ نمبر اس میں سے انہوں نے ایس آئی سی کے لیے سائن کر کے دیا. تو اگر آپ لا کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کی نہیں بنتی, اگر بنتی ہیں تو ایس آئی سی کی بنتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو دیکھیں تو اس میں یہ ایشو آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ اس پہ فردر جو ہے کورٹ میں ڈیلیبریشنز ہوں گے, چاہے وہ ریویو میں گورنمنٹ جو گئی ہے اس کے تھرو ہو یا کوئی اور میکنزم ہو, لیکن یہ اس ایشو میں ابھی تک ابہام ہے جو کہ اچھا یہ کہیے گا کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے, ابھی وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی قانون سازی پر وہ عمل کریں یا پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل کریں, جس پر باقاعدہ طور پر وضاحت بھی سپریم کورٹ نے جاری کی. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے یا پھر پارلیمنٹ کی قانون سازی کا؟ بھائی یہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کے سمجھنے کی بات نہیں, یہ تو ایک لیگل کویسچن آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینس ہیں, پارلیمنٹ کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے اور لا میکنگ جو ہے وہ پیورلی پارلیمنٹ کا کام ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو پارلیمنٹ کا قانون ہے ظاہر ہے کہ وہ فوقیت رکھتا ہے, اور کورٹس کو بھی جب وہ فیصلے کریں اپنے تو وہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فیصلے کریں. بالکل سر, یہ بتائیے گا اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو نتائج جو جیسے جیسے پڑھتے ہیں تو وہ سامنے آنا شروع ہوں گے. ظاہر ہے کہ اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارے لا میکنگ پاور جو ہے اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے, تو پارلیمنٹ یہ پوزیشن لے گی, اور کورٹس جو ہیں اگر اس کو اسٹرکٹلی دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کنٹیمپٹ میں بھی لوگوں کو رکھے. بٹ یہ ابھی آگے جا کے فیصلے ہونے کہ کس طرح سے یہ پلے آؤٹ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام لازمی ہے اور اس پر کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو یہ جو آئینی جو ترمیم ہو رہی ہے اس سے متعلق کتنا کنسنسس بلڈ کر دیا, اور خاص طور پر اس شق سے متعلق؟ جی نمبرز پورے ہوں گے تبھی جو ہے آئینی ترمیم ہوگی, بغیر نمبرز کے تو نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2/3 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس چاہیے ہوتا ہے. تو جب نمبرز پورے ہوں گے تبھی یہ موو ہوگا, اور تبھی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا اور بھی کوئی, اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے
तो वो 2/3 के वोट से ही होगा, जो कि मौजूदा सूरत में 224 का हाउस बनता है। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक हो चुका है और मौलाना साहब की क्या डिमांड्स हैं? हमें अभी तक ये सामने बात नहीं आ रही है, वाज़ेह हो रही है, आप बताइएगा। लेकिन कोई ऐसी डिमांड सप्लाई वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती हैं। जाहिर है उनसे डिस्कशन हो रहा है कि कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड निकले। मौलाना साहब ने भी और कल तो पब्लिकली भी कह दिया कि वो आईनी कोर्ट के हक में हैं। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, तो उस लिहाज से तो इन प्रिंसिपल तो एक एग्रीमेंट है। अब क्या उसके जो है खदखाल होते हैं और क्या उसके डिटेल्स होते हैं, उस पे जो है वो देखना होगा। जाहिर है कि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस है, उनसे बातचीत भी जारी है, उसके बाद ही इस पे कोई फाइनल कोई शेप नहीं। अच्छा, इख्तलाफ की अगर हम बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि वो तो ठीक है कि इत्तेफाक जो हो रहा है, किन शिकों पर इख्तलाफ है, बता सकते हैं आप? भाई इख्तलाफ तो भाई कई चीजों पे हो सकता है। अभी तो उन बातों पे तो हम नहीं आ रहे। अभी इस वक्त तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड क्या बन सकता है, और जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे एक कॉमन ग्राउंड बन रहा है, तो पहले उसको हम लॉक इन करें, उसके बाद आगे की बात होगी ना। अच्छा, ये बताइए कि पहले इदारों के दरमियान यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट या फिर इस्टेब्लिशमेंट, हमने देखा कि कुछ इस तरह के मामला थे, लेकिन अब इदारों के अंदर भी एक फ़ज़ा ऐसी बन गई है, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किस तरफ आप देख रहे हैं? यानी कोई आईनी ब्रेकडाउन की तरफ खुदा ना खास्ता ये मुल्क जा रहा है? नहीं, इंशाल्लाह खैर आईनी प्रोग्राम नहीं होगा सर। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट मुल्क है। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन डेमोक्रेटिक रूट्स जो हैं वो बांध चढ़ रहे हैं, तो वो नहीं होगा। लेकिन मैकेनिज्म्स जो होते हैं कानून के मुताबिक, वो इस सारी चीज को प्ले आउट होने। सर ये बताइएगा कि आईनी तरमीम कब तक असेंबली में पेश हो जाएगी? भाई दिनों की प्रेडिक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ, जब जो हैं सारे जो कंसर्न लोग हैं वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे और नंबर्स आ जाएंगे, तो फिर आईनी तरमीम भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब थे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि नंबर जब पूरे हो जाएंगे बिल्कुल तो आईनी तरमीम आ जाएगी। क़ब्ल अज़ वक्त होगा कुछ भी कहना, सस्पेंस है। हाँ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उन्होंने बहरहाल वाज़ेह कर दिया। बिल्कुल जी। तो एक ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। विल बी बैक विद सम नाइस न्यूज़। जी। कुछ अच्छी न्यूज़ है हमारे पास, आप लोग कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब पाकिस्तान की खूबसूरती की बात, हाँ खूबसूरत करें जरा टेबल को। बट जी हम पाकिस्तान की खूबसूरती जब देखते हैं, वी रिमाइंड आवरसेल्व्स कि किस खूबसूरत कंट्री में हम पैदा हुए हैं, और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हम ये आपको भी और अपने आप को भी रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि क्या नहीं है हमारे पास। आप देखें क्या स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं कि सबसे खूबसूरत है जी दुनिया में स्विट्जरलैंड। आप जरा पाकिस्तान के ये इधर तो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि खूबसूरती होती क्या है। यानी झरने हैं हमारे पास, पहाड़ है हमारे पास, दरिया है, रेगिस्तान है, समंदर है, लहलहाते खेत है, लहलहाते खेल है, वादियां है, मौसम है, बारिश है, बर्फबारी है। मतलब क्या नहीं है। All 4 seasons are present in पाकिस्तान, और जितनी भी आपको लैंडस्केपिंग दुनिया में ग्लेशियर्स हैं, आई मीन माउंटेन पीक्स हैं हमारे पास क्या नहीं है। तो इतनी खूबसूरती के बावजूद पाकिस्तान का टूरिज्म कहाँ है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा पैकेज दिखाएंगे और गेस्ट भी हमारे साथ होंगे जो बताएंगे कि वजह क्या है, आखिर हम क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान के उस इमेज को। तो एक पैकेज है, पैकेज के बाद
पाकिस्तान को कुदरत ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। हमारे यहाँ बुलंद पहाड़ी चोटियाँ, दरिया, समंदर हैं, वसी मैदानी इलाका है, जंगल हैं, रेगिस्तान हैं, मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा और टेक्सला जैसे तारीखी आसार कदीमा और गिलगित, हुंजा, सवात, कागान, गलियात और चित्राल जैसे सयाहती मुकामात की तवील फहरिस्त है। 4 मौसम हैं और सूबों की मुख्तलिफ सकाफतें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सयाहती इदारे ने पाकिस्तान को साल 2023 में सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शाया टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट में सयाहत के शोबे में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का एतराफ है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस साल गैर मुल्की सयाहों की आमद में 115% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैनुल अक़वामी वसूलियाँ 1 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। पाकिस्तान की कुल GDP में सयाहत का हिस्सा 5.8% है। पिछले बरस सिर्फ सयाहत के शोबे ने 4 मिलियन अफराद को रोजगार फराहम किया, जो मुल्क की मजमूई नौकरियों का 6.7% है। WTO टूरिज्म बैरोमीटर के मुताबिक यूरोप, एशिया पैसिफिक, अमरीका, अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के ममालिक में कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और रोमानिया सयाहत के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले दीगर ममालिक हैं। मगरबी यूरोप का छोटा सा मुल्क पुर्तगाल सयाहत से 58 अरब डॉलर कमाता है, जबकि तुर्किया सयाहत से सालाना 55 अरब डॉलर कमाता है। हाल ही में दिवालिया होने वाले श्रीलंका की सिर्फ सयाहत से सालाना आमदनी 11 अरब डॉलर है। दुनिया भर में सयाहत को क्या बात है ज़ुहैब, मतलब क्या नहीं है हमारे पास। एंड दिस इज सच अ ग्रेट टाइटल टू हैव कि 2024 की बेस्ट कंट्री फॉर टूरिज्म इज पाकिस्तान। ये और बहुत दुनिया में आप देखिए कितना यानी मईशतें चल रही हैं, तो हमने और हमारा हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अच्छा है। हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत अच्छा है, हेरिटेज हमारा देखिए, हेरिटेज कितना अच्छा है, लेदर हमारा कितना अच्छा है, कॉटन पूरी दुनिया में जाती है, पूरी दुनिया में। तो लेकिन इस सब के बावजूद वजह क्या है कि पाकिस्तान का टूरिज्म और उससे हम कमा नहीं पा रहे हैं। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर मैनेजर PGDC मुख्तार अली साहब ने। मुख्तार साहब, हाँ, ये बस हमें ज्वाइन करने ही वाले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया आपने इस फोरम पे इनवाइट किया। नहीं और आज दुनिया भर में सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। लेकिन देखिए मसला ये है कि हमने तो अपने पैकेज में भी, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कितनी चीजें हो सकती हैं। पूरी दुनिया कमा रही है, सयाहत के जरिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान बेशुमार नेमतों के बावजूद उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा अपने इमेज को। वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हमारी पूरी मईशत में टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई है, बड़ी शानदार है। इस हवाले से कि हम अपने तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को उस लेवल पर प्रोजेक्ट करने में किसी हद तक कामयाब हुए और इंक्रीज़ भी किया हमने। 2023 में हमारा जो बैरोमीटर है वो ये बताता है कि जहां हम दुनिया भर में 121 इंडेक्स पे थे और हम 101 पे आ गए, ये 77% इंक्रीज़ है। और ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा है कि पाकिस्तान ने मुसलसल 2020 के बाद, कोविड के बाद जो है, मुसलसल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, ख़ासतौर पे ट्रैवल फेयर एंड फेस्टिवल में मुसलसल जो है शिरकत की है। इनमें WTM लंदन है, ATM दुबई है, और जो है न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है, उसमें हमारी शिरकत हुई। तो इस तरह हम तकरीबन हर साल 5 से 6 उनमें जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें शिरकत कर रहे थे। और मुसलसल 3 साल की मेहनत के बाद ये जो बैरोमीटर आपने जो बताया, इस बैरोमीटर में जहां 121 से हम 101 पे आ गए हैं, तो अगर मुसलसल ये जदोजहद जारी रहे तो मैं यकीन से कहता हूं कि जहां बाकी जो कंट्रीज जो हैं अपने मुल्क के लिए जो है ज़र मुबादला कमा रहे हैं और अपनी सयाहत के फ़रोग में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने तमाम डेस्टिनेशंस को दुनिया भर में मुतारिफ कराने के लिए बहुत बड़ा बजट रखते हैं। जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है और ख़ास तौर पे जो चीज़ें हमारे यहाँ डेवलप हुई हैं, ख़ास तौर पे हमारा नई जो हमारी
पोर्टल है वो तैयार हो गई है। हमारा जो ख़ास तौर पे हमारा एक ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च हुआ है जिसमें हमने बहुत अच्छी वीडियोस जनरेट की हैं। सर ये बताइएगा कि के लिए तैयार की है। जी सर ये बताइएगा ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज जो टूरिस्ट के लिए होती हैं, जो लैंग्वेज बैरियर के साथ आते हैं, उनके लिए क्या है फैसिलिटीज जहाँ पे टूरिस्ट कंफर्टेबल हो, वो जाके जो फीडबैक दे वो ही बहुत बेहतरीन हो? देखेंगे जहाँ तक मामला है सयाहत में मेज़बानी के हवाले से तो पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर है कि वो हमेशा जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा किरदार अदा करता रहा है। ये जो लास्ट डिकेड्स है इसके अंदर जो ख़ास तौर पे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में नए रेस्टोरेंट, होटल्स और मोटेल्स तैयार हुए हैं वो शायद पिछले 2 डिकेड्स में नहीं हुए। बहुत रोड फैसिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं और अकोमोडेशन जो है वो ख़ास तौर पे उसमें बेहतरी आई है। और इस बेहतरी के साथ ख़ास तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ सयाहत में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है डोमेस्टिक टूरिज़्म का है और हम अब फोकस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिज़्म के जो सयाह हैं वो पाकिस्तान आएँ और मुसलसल हम इस पे और मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ममालिक तक हम अप्रोच करें जहाँ दुनिया भर में बड़े और सयाहती जो इवेंट्स होते हैं उसमें शिरकत करें। ये बहुत बड़ा जरिया है जिसके जरिए हम जो है इंटरनेशनल सयाहों को पाकिस्तान ला सकते हैं। सर ये बताइएगा कि एक पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान का जब वो बाहर जाएगा तभी लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो हम वो उसको पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करने में किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं? देखिए 2 चीज़ें होती हैं जब तक एक सयाह पाकिस्तान आता है और वो अपने जो यहाँ की हॉस्पिटलिटी सेक्टर में और अपना यहाँ जब वो टाइम स्पेंड करता है और जाके अपने मुल्क में बताता है, इसे हम कहते हैं दूसरे वर्ड्स में सीइंग इज़ बिलीविंग। तो सीइंग इज बिलीविंग ये है कि वही हमारा बेसिकली एम्बेसडर है जो हम वहां तक ये बात सर वो तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि जो लोग आते हैं वो अपना एक इमेज दिखाते हैं, लेकिन सर एज अ कंट्री पाकिस्तान कौन से फोरम्स को यूज कर सकता है और ज्यादा प्रमोट करने के लिए? कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कोई फोरम्स हैं, कोई सैटेलाइट टीवी है, डिजिटल है, और कैसे आगे जा सकते हैं हम? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका इस हवाले से, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है और इससे दुनिया भर में हमारे मुल्क की जो ख़ास तौर पे मैं व्लॉगर्स को और जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जो है उससे पब्लिसिटी हो रही है हमारे यहाँ और हम भी इनकरेज करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से व्लॉगर्स को बुलाते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आप सही कह रहे हैं, वो टीवी चैनल्स को बुलाते हैं ताकि हमारे यहाँ जितना टूरिज्म डेस्टिनेशन है उनको कवर करें। तो सब हो जाएगा सर, देखिए ये तो सब हो जाएगा, लेकिन देखिए दूसरी तरफ जो पिक्चर है ना वो ये है कि आ भी जाएंगे लोग, लेकिन जो फैसिलिटीज आप दे रहे हैं ना, अगर आप अप कंट्री साइड जाएं, आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं, वहां वो फैसिलिटीज नहीं है कि एक मुल्क के शहरी कोई नहीं है तो फिर जो फॉरेनर आता है उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है, गंद कचरा वहां पर मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे नहीं है, होटल्स कैसे हैं, उनकी सफाई सुथराई, ये चीजें आपको देखने की ज्यादा जरूरत है ताकि लोग मोटिवेट हों। सर मैं आपसे इस बात की आपके क्वेश्चन पे बहुत ही एक पॉजिटिव वो चीज़ हमने जो स्टार्ट की है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे हमने पूरा एक कैंपेन चलाया था। जो अभी रिसेंटली हमने पिछले महीनों में, जिसमें हमने टीवी चैनल्स पे और अखबारात में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया था कि हम अपने और फॉरेनर्स जो आते हैं उन तमाम के लिए हमने बुकलेट्स भी तैयार की, हमने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी बताया कि जितनी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनका बेहतर रहना उन सयाहों के विजिट के ऊपर है। जब वो वहाँ जाते हैं तो अपना जितना गार्बेज है और ये जो चीज़ें आलाइशें फेंकते हैं, इन्हें वहाँ पे बाकायदा जो डेस्टिनेशंस हैं उन पे कोशिश की जा रही है और कुछ NGOs के साथ मिलके वहाँ डस्टबिन बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर वो गार्बेज डाला जा सकता है और उसमें आगाही दी जा रही है कि किस तरह से अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को
जो है वो गंद कचरे से जो है और सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा सकता है। इसके ऊपर पीटीडीसी ने बड़ा एक फोकस किया है और ख़ास तौर पे अब लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलके, जब तक लोकल कम्युनिटीज़ साथ नहीं देती तब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता और उसमें इजाफा बेहतरी नहीं आती। तो इस दफ़ा हमें ये देखने में आया है कि तमाम जो वैलीज़ हैं उनके रहने वालों के साथ मिलके हम जो है लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, वहाँ पे वर्कशॉप भी कर रहे हैं, वहाँ लोगों को अपने हम इस्लामाबाद में भी और उन वैलीज़ में भी जाके जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जिससे बड़ा जो है वो बड़ा फर्क पड़ा है। जो डेस्टिनेशन पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी, अब वो उनमें बेहतरी आ रही है। बिल्कुल, थैंक यू मुख्तार अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। देखिए यही बात है ना कि एक गवर्नमेंट सतह पे तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पर्सनली भी हमें अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। जब हम अप नॉर्थ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शहर के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो उनकी जगह तो नहीं है तो वो अपना समझते ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी करेक्ट करें और ऑब्वियसली गवर्नमेंट सतह पे भी चीज़ें चेंज हों। एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे यहाँ पे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक शॉर्टली। वेलकम बैक नाजरीन, आई होप आपकी कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी सब आपके साथ अब मौजूद होगी। अच्छा, हम जो इससे पहले टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल कि क्या पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का है और कितना यानी पाकिस्तान आकर जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इस पर और आपका जब बिहेवियर और एक आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका डिमीनर जिस तरह का होता है, उससे भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ के सारे लोग ऐसे ही हों। तो इस पे बात करने के लिए हमें अहमद जवाद ने ज्वाइन किया है दोहा कतर से, currently working as an assistant manager in Deloitte, दोहा कतर में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जवाद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं डेलॉइट में, लगता है पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है, और डिलॉइट में प्लस मैं इसको ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो शोबा है ना हमारा, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत डोमिनेट है। यहाँ पे पाकिस्तानीज को यूजुअली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स को, और प्लस यहाँ पे वो वेल पेड और बेटर पेड होते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ अकाउंटेंट्स पाकिस्तान से आती है वो बहुत ही मतलब रिफाइंड हमारे पास क्वालिटी आती है, ड्यू टू जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जब वहाँ से होके आते हैं ना लड़के, तो वो काफ़ी रिफाइंड होते हैं, और इसी चीज़ की वजह से एक डिफरेंट डेमोग्राफिक्स नज़र आते हैं यहाँ पे बाकी नेशनलिटी से कंपैरेटिवली। अच्छा, मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान में होते हैं तो बहन भाई अपने घर में लड़ झगड़ भी लेते हैं, आपने कहा ना बहुत ज्यादा तादाद है। वहाँ कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में लड़ते झगड़ते हैं आप, या मिलके रहते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जेल्ड है, बहुत ही लिमिटेड सी कम्युनिटी है जो कि 3 लाख लोगों पे मुश्तमिल है, और ये लोग आपस में बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं, और इनके ना आपस में कल्चरल इवेंट्स और गैदरिंग्स ये बहुत ज़्यादा होती हैं। सिमिलरली मतलब कि अभी कुछ अर्से पहले इन्होंने पूरा एक मैंगो फेस्टिवल किया था, प्लस फिर कल्चरल इवेंट्स 14 अगस्त को हुए थे, और अभी जो फीफा में हमारे पास पाकिस्तानी वॉलंटियर्स थे, वो बहुत, उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी थी, और उन लोगों ने काफ़ी रिप्रेजेंट किया है और मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया। बिल्कुल, तो मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा जेल्ड इन है और एक साथ रहती है। दैट्स वंडरफुल टू नो। जवाद, ये बताइएगा पाकिस्तान की कौन सी चीज़ अगर हम मार्केट में जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिकती है और लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी दीगर ममालिक से आए हुए हों? यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ बिल्कुल एज अ कंज्यूमर यहाँ पे, तो यहाँ पे पाकिस्तानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखिए ना, हम टूरिज्म में यही बात कर रहे थे कि हमारी फील्ड्स और ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। मैं एज अ कंज्यूमर आपको बता सकता हूँ कि हम लोग जब ये पाकिस्तानी मैंगोज का सीजन आता है तो यहाँ पे पाकिस्तानी मैंगोज बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा। और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको,
तो मतलब एक जैसे ही आते हैं ना तो आपको फील होता है कि जो सुपरमार्केट है वहाँ पे रश हो जाते हैं और वो एम्प्टी हो जाते हैं। तो ये बड़ी मार्केट है आप कह रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे है आज, तो इस पर ज़रा हमारा फोकस ज़्यादा है। वहाँ लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान की जब मुख्तलिफ जगह सोशल मीडिया के ज़रिए वो देखते हैं नारान का गान और दीगर वादियाँ और फिर ये सब कुछ सारे जितने शहरों में जो एक कल्चर एक्टिविटी होती है, आना चाहते हैं यहाँ पर, क्या रुकावट, अगर कोई रुकावट है तो वो क्या है? देखें, रुकावट वही है जो हम सबको ही पता है, कहते ना बैग, क्योंकि यहाँ पे ना पाकिस्तानी को बहुत अच्छे वेल परसीव करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड कम्युनिटी है पाकिस्तान की। तो जो हमारे कोलीग्स वगैरह हैं अरबिक नेशनलिटीज़ वगैरह के भी, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्तियाक होता है पाकिस्तान विज़िट करने का। नॉर्दर्न एरियाज़ हम उनको वीडियोस वगैरह में दिखाते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इश्तियाक होता है वहाँ जाने का। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना, कुछ चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो ज़रा सा वो करते हैं, इमेज जो है ना पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो एक्चुअली कुछ छोटे छोटे वाक़यात भी अगर हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे एक थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं लोग। वरना उसके अलावा ना अगर ये बैरियर एक ख़त्म हो जाए तो प्रोजेक्टिंग ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्रोजेक्शन है। जवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और अपने ओपिनियन किया। वही बात है कि प्रोजेक्शन आपकी हमारे दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी प्रोजेक्शन जिस तरह करते हैं उससे उनका टूरिज्म जाता है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त, हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस की ब्रेक है। हम वापस आएंगे। कराची की हाई राइज बिल्डिंग्स, एक कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है कराची, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ फिर एक छोटे नन्हे मुन्ने हमारे पास वो है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी। 1945 में अहमद रुजनी की आवाज में गाए इस गाने ने शहर कायद की मकबूलियत में यकदम इजाफा कर दिया। बंदर रोड बाबू हो जाना फुटपाथ पर। वैसे तो 1876 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कराची में पैदाइश हुई तो उस वक्त भी ये एक तरक्की याफ्ता शहर था। बरतानवी फन तामीर के बाइस यहाँ की इमारतें आज भी कराची को दीगर शहरों से मुनफरिद बनाती हैं। फिर वक्त बदला, हालात बदले और कराची का हुलिया भी बिगड़ गया। जी हाँ, अब जहाँ नजर उठाएं सिर्फ बुलंदोबाला बेढंग बेढब इमारतें ही नजर आएंगी। हसास मुकामात यानी एयरपोर्ट और साहिल समंदर को भी ना छोड़ा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स की तामीर का सिलसिला जारी है। 31 कसीरुल मंजिला इमारतें अभी 2024 में ही मुकम्मल होंगी। इस शहर में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि ऊंची इमारतें तामीर की जाएं। कराची में तकरीबन 130 बुलंदोबाला ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी लंबाई कम से कम 90 मीटर है और ज्यादा से ज्यादा 380 मीटर है। मसला ये नहीं कि बुलंद इमारतें क्यों बनाई जा रही हैं, सवाल ये है कि जब कसीरुल मंजिला इमारतों को बनाया जा रहा होता है तो वो इदारे कहाँ होते हैं जो तामीरात से होने वाली आलूदगी और शहर के सब्जा को खत्म करने पर एक्शन लेते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स ने समंदरी हवाओं का रास्ता भी रोक लिया। दर्जे हरारत में इजाफे की वजह भी यही इमारतें बन रही हैं। अगर इसी तरह शहर कराची में इमारतों का जंगल और कंक्रीट के फरीद सर उठाते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ इंसान को सांस लेने के लिए मसनूई हवा का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपने देखा कराची जो है वो कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है और पार्किंग की जगह नहीं है, बिल्कुल फुटपाथ नहीं है। तो इसी टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया है फ़हीम उज़्ज़मा साहब ने, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आरिफ जीवा साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन आबाद है वो। और फिर कामरान, उनसे भी बिल्कुल बात करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले हमारे नुमाइंदे कामरान शेख ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और वहाँ देखा है जाकर कि कैसे कंक्रीट का जंगल बन रहा है और क्या सूरत हाल है। तो पहले कामरान की जानिब बढ़ते हैं जी।
जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया की मिली भगत ने कराची का नक्शा बिगाड़ दिया है। इस वक्त मैं ज़िला वस्ती नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जो कि कराची का दिल कहलाया जाता था, और यहाँ पर 60 गज, 80 गज और 100 गज के जो जगहें थी वहाँ पर एक फैमिली आबाद, लेकिन अब इसी रकबे पर कई कई मंजिला तामीरात की जा चुकी हैं, जिससे सीवरेज के मसाइल समेत तमाम बुनियादी मुश्किलात का सामना है। ज़िला वस्ती के बाद अब हम आ चुके हैं ज़िला शर्की गुलिस्तान जौहर में, और यहाँ भी देखा जा सकता है कि इस वक्त मैं ब्रिज में मौजूद हूँ और ताहद्दे निगाह तक बुलंद वाला इमारतें मौजूद हैं, जिसमें कई कई ख़ानदान आबाद हैं और दर्जनों बल्कि सैकड़ों के हिसाब से फ्लैट्स हैं। उन फ्लैट्स की वजह से सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल ये तमाम नाकारा हो चुकी हैं। एक जो 60 और 80 और 100 गज की या फिर इससे ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल जो जगह थी, वहाँ का सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम उसी रकबे के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन जब उन पर फ्लैट्स, पोर्शन और यूनिट्स तामीर किए गए तो उसके बाद कई कई ख़ानदान आकर आबाद हुए, जिसकी वजह से यहाँ रिहाइश करने वालों को बेशतर मुश्किलात का सामना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये दावे और वादे कर रही है कि गैर कानूनी तामीरात करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्डर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब शहर में जगह जगह तामीर होती हुई गैर कानूनी इमारतें ये साबित कर रही हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान अपना वादा पूरा करने में नाकाम नज़र आते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं ज़िला मलीर, वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। ज़िला शर्की के बाद ये है ज़िला मलीर की सूरत हाल। यहाँ पर भी पोश इलाका है, कंटोनमेंट का एरिया है और ताहद्दे की निगाह तक हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। अब से कुछ दिनों पहले भी ये बताया गया कि इनेदामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और जो गैर कानूनी इमारतें हैं या गैर कानूनी तामीरात करने वाले लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। गो कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो तमाम की तमाम कार्रवाई जो है वो कॉस्मेटिक साबित हुई और कुछ इमारतों को तोड़ा गया, कुछ जगहों पर जो है वो गैर कानूनी जो तामीरात कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहाँ पर मिसमार इमारतों को भी किया गया। लेकिन अब भी कराची शहर की अगर बात की जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हज़ारों की तादाद में पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात की जा रही है, जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, आपने देखा हज़ारों की तादाद में काशिफ साहब ने जो रिपोर्ट हमें दी है, और हम जो देखते हैं कराची में कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अथॉरिटीज़ हैं, लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, उस पर लोग बात ज़रूर करते लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स की वजह से हर दफ़ा पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कराची को कोई देखने वाला नहीं है, क्या वजह है? देखिए, मैंने बचपन में एक किस्सा पढ़ा था जी। किसी एक सिपाही को बहुत सारे तीर लगे हुए थे, तो उसका कॉमरेड जो था साथी, वो एक एक करके तीर निकाल रहा था। तो जिसके जो तीर निकाल रहा था उसने पूछा कि तुम्हें व्हेन डज इट हर्ट, ये कब तकलीफ देता है? उसने कहा जब मैं हंसता हूँ। सो हमारा आपके पैकेज ने अमूमी जो बात है वो ये कि इलीगल बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, हाई राइज बन रही हैं। अच्छा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, बिल्डिंग कंट्रोल का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर, मैं भी चीज़ों को इसी तरह से देखता था। मसला ये है कि देखिए, अगर आप किसी भी ऊंची जगह पर पानी को डालेंगे वो अपना रास्ता खुद निकालेगा। कराची में हाई राइज इलीगल हो या लीगल हो, लीगल और इलीगल में सिर्फ फ़र्क ये है कि एक सरकार उस पर स्टैम्प कर देती है लीगैलिटी के, लीगल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क से कराची अट्रैक्ट करता है लोगों को। कराची की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रोज़गार, पोर्ट, इंडस्ट्री की वजह से। यहाँ पर हाउसिंग रिक्वायर्ड है। एक ज़माना था जब स्कीम 33, स्कीम 45 और ये वो बन रही थी, शहर फैल रहा था। कराची की 1998 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ आबादी थी, 28,000 बसें थीं, 3.5 लाख मोटरसाइकिलें थीं और 3 लाख रजिस्टर्ड कारें थीं।
ये डॉक्यूमेंटेड वो हैं। आज की तारीख में कोई 61 पता नहीं कोई कहता है कितनी, उससे भी ज़्यादा मोटरसाइकिलें 61 लाख से 18 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कारें हैं और बसें जो हैं वो 6000 रह गई। तो प्रॉब्लम है लोगों का कि ट्रांसपोर्टेशन का, कि लोग काम के लिए इसके लिए कैसे आए, कैसे जाए। तो बजाय शहर फैलने के वर्टिकली बढ़ रहा, बिल्कुल यही। और ये प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, जिसकी वजह से जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मसला चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। वो साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन आरिफ साहब की जानिब बढ़ने से पहले फैसल आप बताइए, ये तो कब से कराची के मामलात को आप कवर करते आ रहे हैं और फिर वो डिमोलिश की जाती हैं बिल्डिंग्स, पता चलता है कि लोग आ जाते हैं अपने पानी बिजली गैस के बिल लेकर कि ये देखें हमें तो अथॉरिटी ने बिल बाकायदा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लीगल है, तो आप कैसे गिरा रहे हैं तजावुजात, तो क्या मतलब आपने क्या इसका मसला देखा? देखिए कराची के जो, जैसे कि फ़हीमुज़्ज़मा साहब ने बताया कि कुछ इमारतें लीगली जो कि बननी नहीं चाहिए लेकिन बन रही है, इसलिए कि यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है, जो सड़कें हैं, पार्किंग के इशू हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू है, गैस के इशू है, लेकिन आप जो है वो अप्रूवल दे रहे हैं और जहाँ पर पहले 10 फैमिलीज़ रहती थी वहाँ पर आज जो है वो 400 फैमिलीज रह रही हैं, इसलिए कि वर्टिकली आप जो है वो बढ़ा रहे हैं। अप्रूवल दे रहा है? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दे रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि नॉर्थ नाज़माबाद की अगर हम बात करें, नॉर्थ नाज़माबाद की मेन शारा जो हमारे रिपोर्टर्स ने भी दिखाई, कामरान शेख ने, यहाँ पे पहले बेंगलोस थे 400 यार्ड 600 यार्ड, और इस बेंगलोस में एक फैमिली 2 फैमिलीज रहती थी। अगर हम मजमूई तौर पर देखें कि 10 या 15 लोगों की गुंजाइश थी, अब वहाँ पर 80 जो है फैमिलीज़ रह रही हैं, जो फ्लोर्स बनाए 12 14 फ्लोर्स। अब इसकी जो है वो अथॉरिटीज़ ने इजाज़त दी जिस पर बन गई, लेकिन इनकी सीवरेज लाइनें वही हैं। सर तो ये हमें पता है कि हो क्या रहा है, ये तो आप लोग सूरत हाल जो बता रहे हैं ये तो आंखों देखी बात है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कौन सी अथॉरिटी है जिसको हम क्वेश्चन करें कि ये हो क्यों रहा है? देखिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर इदारे भी हैं जो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें गैस प्रोवाइड करते हैं, देते होंगे। जी हाँ, उन्हें वहाँ पर अगर फैमिलीज रह रही हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे संगीन सूरत हाल ये हो गई है कि पोर्शंस बनने लगे हैं। पोर्शंस मतलब आप ये देखें, लियाकताबाद, मैं आपको बताऊं, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद, यहाँ पर जो 240 गज के मकान थे, 60 गज के, 80 गज के, जो कच्ची आबादियाँ जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर भी पोर्शंस बन रहे हैं 1+6, 1+8। तो वहाँ पर जो है सूरत हाल सीवरेज का निजाम आप देख लें बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया। वर्टिकल के बजाय हम हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं फैल रहे और ये अथॉरिटीज को क्यों नहीं ये बात करते? आरिफ साहब आपसे ये पूछेंगे कि व्हाई इज कराची बिकमिंग अ वर्टिकल कंक्रीट जंगल, व्हाई कांट इट बी अ हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप? देखिए, मैं पहले तो फ़हीमुज़्ज़मा साहब और फैसल भाई ने जो बात की है, मैं 100% एज ए बिल्डर मुत्तफिक हूं उनसे। जो इन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का इशू है और दूसरा ये जो पोर्शंस की बात की, बिल्कुल मुत्तफिक। जहाँ तक बात है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का, देखें दुनिया में इस वक्त वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो रही है सिर्फ इस वजह से कि एनवायरनमेंट जो है वो और आपकी जो लैंड है उसको जो है वो सेव किया जा सके। आप बॉम्बे को देख लें, मुंबई को आप देख लें, मुंबई के अंदर जो है वो 60 और 40 फुट रोड पे आपको 60 मंजिला बिल्डिंग नजर आएंगी। बट सर वहाँ पानी भी है, गैस भी है ना, ये मसला है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, हम एक बिल्डिंग की अप्रूवल लेते हैं हाई राइज बिल्डिंग की, तो उसमें हम जो है अगर सिटी के अंदर होती है तो गवर्नमेंट को बेटरमेंट चार्जेस पे करते हैं, बिल्कुल अदर देन आउटर डेवलपमेंट चार्जेस के, वो एक एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना जो है उसकी जो है वो सेवरेज लाइन को ठीक किया जाता है, ना उसकी जो है वो वाटर लाइंस को ठीक किया जाता है। ये सारे मसले देखें कहाँ से शुरू हुए। आप अगर बैक पे चले जाएं, हमें अगर किसी पे बात करनी है तो हमें खुल के बात करनी होगी। मैं एज ए आबाद के साबिक चेयरमैन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो है वो आबाद के मेंबर्स बड़ी कोशिश कर रहे हैं कई सालों से कि जी ये जो सिस्टम एक हमारे सिंध शहर के अंदर आया है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल, फ़हीमुज़्ज़मा साहब से आप एक सवाल कीजिएगा, क्या इन जैसे लोग जो है वो आज के दौर में डीजी एसबीसी लग सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर लग सकते हैं? नहीं लग सकते, क्योंकि हमारे इधर ठेकेदारी कराची बिल्डिंग माफिया हो गया ना फिर तो। देखिए बिल्कुल ये
आरिफ साहब बिल्कुल मैं आरिफ साहब से जी आरिफ साहब कहिए ऑफिसर लग नहीं सकता जब तक वो पिछले ऑफिसर से ज्यादा बिट ना दे या ज्यादा ऑफर ना दे कि मंथली जो है वो इतना प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल जब ये सिस्टम होंगे, ये चीजें होंगी, इसी बात को बिल्कुल आगे लेकर बढ़ते हैं फहीम साहब। जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए एक तरफ तो ये मसाइल है, फिर आपने कहा कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, कराची में रोजगार की तलाश में आते हैं और उसकी वजह से आबादी बढ़ रही है, और फिर ये सिस्टम की जो उन्होंने बात की, अगर ऐसा मैं बताऊं, मैं आरिफ साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, मगर आपने एक लफ्ज सुना होगा बिल्डर्स माफिया, ठीक है? मैं आरिफ साहब की तरफ नहीं कह रहा हूं, ठीक है, की तरफ नहीं। देखिए जो माफिया है ना, इसमें अफसरों को, सरकार को फहीम ज़मान एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लग सकता, ये बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप, मुझे यकीन है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो भी फोरम शॉपिंग मॉल के ऊपर आशियाना पे ज़रूर गए होंगे, कराची का एक बड़ा, उसकी सर्विस उसके मुखालिफ समत में, यानी ख़ियाबान जामी के 12 फुट चौड़ी सर्विस रोड है, बिल्कुल उसके ऊपर 29 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। राइट। आप मुझे ये बताइए, मैं मानता हूँ आरिफ साहब और फहीम ज़मान दोनों इसी शहर के बेटे हैं ना, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कैंटोनमेंट बोर्ड, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, यहाँ पर इंतहाई करप्ट ऑफिसर्स बैठे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। सरकार सिंध में इंतहाई करप्ट लोग बैठे हैं, ये भी मैं मानता हूँ, मगर मसला ये है, जब मैं 12 फीट चौड़ी सर्विस रोड पे अगर 29 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त लेने जाऊँगा, तो क्या मैं उस इल्ज़ाम से जो मुझ पे लगता है उससे बरी-उज़्ज़मा हो सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। इस वक्त भी जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, अगर आपको याद है, नस्ला टावर तोड़वाई थी, बिल्कुल सही तोड़वाई थी, उसमें कोई दोबारा में, जब वो बनना शुरू हुई थी, मैं उस वक्त अपने एडिटर के पास गया था, मैंने जाके दिखाया था, देखो यार ये वेस्टलैंड थी, इसके ऊपर कब्जा करके किया जा रहा है, ठीक है। आज क्लिफ्टन डिफेंस और उस एरिया में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और क्लिफ्टन के एरिया में कम से कम 30 कंप्लीटली इलीगल, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड, चलने की जगह नहीं है, दिल्ली कॉलोनी के 50-50 गज के 100 गज के मकान थे, आज आप धड़ाधड़ बिल्डिंगें बना रहे हैं। बिल्डिंग। इसी को बात को आगे लेके बढ़ते हैं। फैसल ये कहिएगा, हमने बड़ी ऐसी खबर ब्रेकिंग्स भी की है आपके साथ ही, आपसे रिपोर्टिंग भी आप करते रहे कि आग लगने के वाकयात हो जाते हैं, फिर इमरजेंसी एग्जिट के मसाइल होते हैं, फायर टेंडर नहीं जा सकता है अंदर क्योंकि हाई राइज बना हुआ है, पोर्शंस में फिर वो जो आपने बात की, तो इन चीज़ों को ज़रा हाईलाइट कीजिए। कितना ही है? मैं यही सोच रहा था कि आप जो है वो मुझसे यही सवाल करेंगे और इसका जवाब मैं तैयार कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर बिल्डर्स जो NOCs लेते हैं, वो पार्किंग खत्म कर दी जाती है, वहाँ गोदाम बना दिए जाते हैं, वहाँ पर दुकानें एक्स्ट्रा बना दी जाती हैं। आप देखें, बिल्कुल RJ गुलिस्तान जौहर कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, RJ मॉल्स, उसमें आग लगी थी, 8 से 10 अफराद मर गए जल के। वहाँ पे कोई फायर एग्जिट नहीं होता। जब ये इमारत तामीर होती है, 1-2 दिन में तो तामीर नहीं होती, इसको महीनों लगते हैं, साल लगते हैं तामीर होते हुए। उस वक्त वो अफसरान सोए हुए होते हैं, वो इसलिए सोए हुए होते हैं कि एक सिस्टम जिसको हमने नाम दिया है रिश्वत के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क को नाम दे दिया गया है सिस्टम प्लाजा की आग भी याद होगी आपको। जी हाँ, आप देखें इतनी बड़ी इमारतें तामीर हो गई हैं और इसमें जो है फायर एग्जिट नहीं है, कोई जो है पार्किंग नहीं है, सारा ट्रैफिक लोड जो है सड़कों पर है गाड़ियों का। आप किसी भी बिल्डिंग में क्या लगाओगे, कहाँ से? और इसके अलावा आप ये देखें कि आप कहीं पे भी गुजरें, खालिद बिन वलीद रोड देख लें, पूरा पार्किंग है नहीं, सड़कों पर ट्रैफिक है, इसलिए ट्रैफिक जैम के मसाइल क्यों हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन्होंने बताया, वो माफिया और है, पार्किंग माफिया देखे ना, वो इसके साथ कनेक्ट है, वो इसके साथ कनेक्ट है। अब रिश्वत के पैकेजेस हो गए, जैसे आपके मोबाइल फोन के पैकेजेस है ना, इस तरह रिश्वत के पैकेज हो गए। जी हाँ, अगर आपको एक बिल्डिंग तामीर करनी है जो कि आपको पर फ्लोर, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके की बात करूं और वहाँ पे 240 गज पे मुझे पोर्शंस बनाने, मैं एक फ्लोर डालूंगा, मुझे जो है वो 25 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी। अच्छा, इस रिश्वत के पैकेज में मुख्तलिफ अफसरान, इसके अलावा कुछ बाअसर शख्सियात इलाके की, इसके अलावा कुछ जो है नाम नहाद NGOs, सहाफ़ी, ये तमाम लोग
یہ ایک نیٹ ورک بن گیا بالکل, اور وہ جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ فلور ڈالتا ہے اور وہاں پر. اچھا پھر اس میں جو ہے جب شور مچتا ہے, جیسے آج پروگرام ہو رہا ہے, اس پہ تھوڑا سا ہلچل مچے گی, اس پہ ایکشن دکھانے کے لیے کریں گے, تو پھر کاسمیٹک جو ہے وہ آپریشن دکھایا جائے گا, گرانے پہنچ جائے گی ٹیم, گرانے جائیں گے, اس کے بھی پیسے لیں گے. بالکل آپ یہ دیکھیں, وہ اس کو کہیں گے کہ ہم یہاں ہول کریں گے, یہاں ہول کریں گے, اس کے جو ہے وہ اتنے پیسے ہوں گے. بلڈر جو ہے وہ جو بنانے والا ہے وہ اس کے اتنے پیسے دے گا, وہ تصویریں بنیں گی اور وہ آ جائے گا آپریشن, اور پھر 1 مہینے بعد دوبارہ پیسے لیے جائیں گے اور پھر تعمیر ہو جائے گا. اس کرپشن کی سولوشن کیا ہے عارف صاحب؟ ہم ایز اے سٹیزن کچھ کر سکتے ہیں, کوئی عدالت جا سکتے ہیں, کیا کریں ایز اے سٹیزن آف دا سٹی؟ وی آر ویری ٹائرڈ, یہ سارے مسائل تو ہم سن رہے ہیں, اس کی سولوشن کی طرف اگر دیکھیں تو کیا ہے؟ دیکھیں اس کی سولوشن تو جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے کوئی آج سے الیکشن سے پہلے کچھ کوششیں کی گئی تھی کچھ اداروں کی طرف سے, اور اس کے اوپر کوئی 3-4 مہینے عمل درآمد بھی ہوا. وہ سیاسی کوششیں تھی, الیکشن سے پہلے کی سیاسی کوششیں کی گئی تھی, اور اس میں کچھ 3-4 مہینے جو ہے وہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ آپریشنز بھی ہوئے تھے, کچھ اپروولز بھی رکی تھی, لیکن وہ ٹوٹلی سیاسی کوششیں تھیں, کسی پارٹی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کرنے کی, یا وہ یہ ساری چیزیں. اس کے بعد الیکشن کے بعد دوبارہ دیکھیں, جب تک کراچی کے اندر اچھے لوگوں کو اداروں کے اندر نہیں بٹھایا جائے گا, یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی فہیم صاحب نے کہا کہ بلڈر مافیا, دیکھیں بلڈر مافیا جو ہے یہ ورڈ یوز ہوا پچھلے 8-10 سالوں کے اندر. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ہم اپنے ممبرانس کو بھی بالکل, کچھ لوگ ہیں ہمارے بھی ملوث ہیں اس میں, لیکن ہم کہاں تک ان کو روکیں گے؟ میں ایک پروجیکٹ کرتا ہوں جس میں تمام NOCs لیتا ہوں, انلیگل کام نہیں کرتا میں, اس میں انلیگل کنسٹرکشن نہیں کرتا ہوں اس پروجیکٹ کے اندر, لیکن جو میرے برابر میں پروجیکٹ کر رہا ہے یا ہاؤسنگ اسکیم کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ اپروولز بھی مل جاتی ہیں لیگل, اس کو جو ہے وہ لیگل کنسٹرکشن. بالکل دیکھیں سر, یہ تو ملٹیپل بڑے مسائل ہیں, چائنا کٹنگ کا مسئلہ ہے, پھر بلڈر مافیا. بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ لیز ہوتا نہیں ہے پروجیکٹ, اور اس کے باوجود وہ بیچ دیا جاتا ہے پورا, بلکہ اس کیپیسٹی سے زیادہ بیچ دیا جاتا ہے. فہیم صاحب آپ یہ کہیے گا کہ کراچی میں ظاہر زلزلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پوری ایک فالٹ رینج سے لے کے کراچی میں بھی بہت سے, آپ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں کراچی کے, تو یہ بھی تو ایک بڑا خطرناک انسانی جان کا مسئلہ ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی بلڈنگز اور ہائی رائزز, تو پھر زلزلہ, اور وہ بریجز جو ہیں اس کے بالکل 2 فٹ کے بعد ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. صحیح. میں اس سے پہلے آپ کی بات کا جواب دوں, یہ آپ نے لفظ استعمال کیا چائنا کٹنگ, اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وائی ڈز چائنا کٹنگ؟ ڈان اخبار میں ایک دفعہ بینر ہیڈ لائن لگی چائنا کٹنگ کے نام سے. میں اس زمانے میں ڈان میں کام کرتا تھا, مجھے چائنیز کاؤنسل جنرل نے کال کر کے پوچھا کہ فہیم کیا کوئی چائنا کی کمپنیز میں انوالوڈ ہے؟ چائنا کٹنگ کا مطلب یہ ہے, جب یہ چائنا کٹنگ شروع ہوئی تھی, اس ملک کے جو بڑے آگے بڑے ہوئے بیٹے تھے انہوں نے شروع کی تھی, تو وہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے نا, وہ بہت ذہین لوگ ہیں, اس شہر میں تو سارے ذہین لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ چائنا کا مال ہے, یہ فائلیں بیچو, ان کو گھماؤ, یہ بعد میں انڈو ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے جو چائنا کٹنگ جو تھا, چائنا کا مسئلہ, دیکھیے مسئلہ پھر یہی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک شہر کی مثال دیتا ہوں. ہم میں دیکھیے, میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بحیثیت ملک و قوم ہماری, کیا ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم زندہ رہیں ایک بحیثیت ملک اور قوم؟ مجھے اس بات کا جواب نہیں ملتا. برلن ایک شہر ہے, بہت سارے لوگ گئے ہوں گے, بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اس بارے میں. وہاں پہ 30% لوگ پرائیویٹ کاریں استعمال کرتے ہیں, 30% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, 40% لوگ یا تو پیدل یا سائیکل پہ کام پہ جاتے ہیں. اچھا ایسا نہیں کہ ان کے پاس کاریں نہیں ہیں, ہر گھر میں 2 کاریں موجود ہیں, میاں بیوی کی الگ الگ کار. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے برلن شہر کو 14 زونز میں ڈیوائیڈ کیا. ایک زون میں AEG کو بٹھایا, دوسرے میں سیمنز کو بٹھایا, مرسیڈیز, BMW. انہوں نے تو جو لوگ ان کارپوریشنز میں کام کرتے ہیں وہ ان زونز میں رہتے ہیں, تو ان کو لمبی چوڑی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا, یہ صدیوں میں جا کے آپ کی جو عقل ہے یہ چیزوں کو سیکھتی ہے, سمجھتی ہے. ہم تو جنگل کی آگ کی طرح ہیں. آپ کے حکمران چاہے وہ اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھے ہوں یا وہ تغلق ہاؤس اور اس میں بیٹھے ہوں,
इनमें से किसी को यही नहीं पता कि 3 साल के बाद क्या होने जा रहा है, ना ही उसको दिलचस्पी है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे शिकस्त है। अच्छा, वो एक और चीज, मास्टर प्लान की बड़ी बात, कराची का मास्टर प्लान है कहाँ, और फिर सेफ सिटी कैमरे की बात होती है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, तो जब ऐसे बढ़ेंगी चीजें तो कहाँ सेफ सिटी, कहाँ सिक्योरिटी और कहाँ? फैसल, बिल्कुल है, यही सूरत हाल है शहर के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप देख लें, वो यही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ है, तकरीबन 6 महीने हुए हैं, उसको फाइनलाइज किया गया है, 7 जो है वो पोल्स लगे और तकरीबन जो है वो 1300 कैमरे पहले फेस में यानी लग रहे हैं, 7000 के करीब कैमरे लगेंगे, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब जो है वो स्टार्ट हुआ है। लेकिन असल जो इशू है वो यही है कि इस शहर में, ये शहर सबको पालता है, आपको पता है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। अब ये शहर में जो लोग आ रहे हैं वो कौन है, कहाँ से रहते हैं, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अच्छा गैर मुल्की भी हैं, आप अफगान देख लें, अभी अफगानों के खिलाफ किया है, तो ये तमाम सूरत हाल है। कॉम्प्लेक्स कतई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझ की जरूरत है, और ये समझ जनरेट होती है जब आप जैसे लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर, हमारी यही कोशिश है कि थ्रू राइज एंड शाइन एंड 365 हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिन पे बात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फ़हीम साहब, आपका आने का, फैसल साहब आपका आने का, आरिफ साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारे नुमाइंदे का भी रिपोर्ट तैयार किया, उनका भी शुक्रिया। तो अब कॉन्क्रीट के जंगल की बात हो रही थी, तो अब हम असली जंगल है, उसमें जो जानवर रहते हैं, उनमें से कुछ जानवर हमारे पास भी है। अच्छा, शो पे आ रहे हैं, बिल्कुल इस शो पे आ रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से बाद आने के आप देखेंगे कि जी कॉन्क्रीट जंगल से हमने यहाँ स्टूडियो में एक छोटा सा जंगल कैसे बना दिया, अभी नहीं, छोटी सी ब्रेक में जाते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको हमने दिखाया कि मुझे डर लग रहा है। सरवत जी, ज़ुहैब कहाँ हैं आप? यार क्या किया हुआ है यार, ये कोई चीता शेरवेर तो नहीं आया हुआ कहीं? मैं इधर मैं छुप जाता हूँ भाई। नहीं, आप ऊपर आए, बड़े अच्छे मकॉयज और इतने क्यूट पैरट्स हमारे साइड पे आए हुए हैं। तो आप कह रही तो मैं आता हूँ, ये तो यहाँ बिठा दिया आपने, उधर भी मैं कहाँ कैसे बैठूंगा यार? कितने क्यूट है, कितने क्यूट है। चले जी भाई, देखें हमने अपने नाजरीन को स्टार्स का बताया, स्टोन्स का बताया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे ये खूबसूरत दोस्त रह जाए। एक छोटा सा पैकेज है, हम आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत दोस्त हमारे कहाँ से आए हैं और क्या हो रहा है, और क्या जबरदस्त माहौल, एक माहौल नेक्स्ट लेवल है, उनकी पार्टी चल रही है। अब मैं रिलैक्स हो गया, कोई ऐसा मसला है ना, कोई जान का खतरा नहीं, कोई जान का खतरा नहीं। छोटा सा पैकेज देके फिर हम वापस आते हैं। अपने सितारों की चाल से जाने अपनी किस्मत का हाल, ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि अपने सितारों की मुनासबत से जानवर पालें? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे आपके ज़ोडिएक साइंस की मुनासबत से आपको कौन सा पालतू जानवर रखना चाहिए और इससे आपकी जिंदगी पर क्या मस्बत असरात रूनुमा होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरीज, स्पाइसेस, कैंसर और सेजिटेरियस की। इस स्टार के हामिल लोग बहुत मुतहर्रिक और मुहिमजू होते हैं। ऐसे अफराद के लिए कुत्ता पालना बेहतरीन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो की। ये लोग सब्र तहम्मुल वाले होते हैं जो जिंदगी में सादगी और सुकून को पसंद करते हैं। इन अफराद के लिए बिल्ली पालना खासा लकी साबित होता है। लिब्रा और जेमिनाई की बात करें तो ऐसे अफराद बहुत जिंदा दिल और बातूनी होते हैं और घर में जानवर रखना, इनसे बातें करना वैसे भी पसंद करते हैं। ऐसे अफराद तोता या फिर लव बर्ड्स पाल सकते हैं जो इनकी शख्सियत की मुनासिबत से बेहतरीन है। आखिर में बात करते हैं वर्गो और कैप्रिकॉर्न की। इनके लिए घर में मछलियाँ रखना बेहद मुबारक साबित होता है। अच्छा जरा एक सेकंड भाई, खामोशी फ्लोर पे भी हो जाए। मिट्टू, हाउ आर यू? हाउ आर यू मिट्टू? अच्छा मिट्टू, हाउ आर यू? हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड कह रहे, वेरी गुड। देखिए यार,
क्या बात है, क्या बात है। माइक लगाना पड़ेगा क्या इनको। बात ज़ुहैब, आप कल से नहीं आइएगा, मिट्टू है यहाँ पे। मिट्टू हमारे साथ है जी। तो अब मिट्टू को जो जिन्होंने इतना प्यार से रखा हुआ है, जी, तो हमारे पास द वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस की टीम यहाँ मौजूद है। आयशा खान है, डायरेक्टर हैं, और आतिफ इम्तियाज़ है, CEO। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप आए और ये खूबसूरत दोस्त अपने साथ लेकर आए हैं। तो भाई बताएं कि ये तो बड़ी एक नई चीज़ है कि पर्सनालिटी, आई नो कि वो मूवीज़ में दिखाते हैं कि व्हाट इज़ योर एनिमल, तो वो एक्चुअली है, ये असल बात है कि हर पर्सनालिटी का, हर स्टार के साथ एक एनिमल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। एनिमल तो डिफरेंट, और जैसे इंसान की पर्सनैलिटी होती है ना, वैसे ही एनिमल की भी पर्सनैलिटी होती है। जैसे इंसान इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है, सेम इज दैट, सेम ब्रीड सेम एनिमल है, बिल्कुल से एक ही ब्रीड है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट होगा एक एक्सट्रोवर्ट होगा। कुछ रिलेशन सिर्फ अपने ऑनर से रखते हैं, राइट, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर के साथ फ्रेंड हो जाते हैं। के साथ फ्रेंड तो ये हमारे बिल्कुल ये बताएं कि इतने प्यार से आपने रखा हुआ है, कितनी इनकी देखभाल होती है। ओ मुझे काटा है इसने, इसको ले ले भाई, भूख लग रही है। सुने, इसीलिए मैं डर रही हूँ, एक जो पीछे मेहमान है ना हमारा। नहीं आते। अच्छा, बट ये बताएं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंटर क्या कराची में है, और क्या लोगों को इनवाइट करता है, क्या दिखाना चाहता है? वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर जो है एक रजिस्टर्ड NGO है जो जानवरों की भलाई के लिए पाकिस्तान में काम करती है, और हम लोग जो हैं, हमारा वाहिद ये एक्शन सेंटर है किसी भी NGO का, जहाँ पर ये सारे एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनको आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं और उनको टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के साथ। और हमारे पास सारे कलेक्शन जो है ना, इवन कि अगर लॉइन कप भी है तो वो भी ह्यूमन फ्रेंडली है कि आप उनको पैट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। ये जो इनके बारे में बताइए, ये कौन सी है? हाँ। जी ये अभी जो है ये पैरेट्स हैं सारे, ठीक है। ये कुछ इसमें ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये जो काकाटू हैं, ये मैक्सिको के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े तोते हैं, मकाओ। ये देखें मैक्सिको का जी मकाओ, देखें आप, खूबसूरत मकाओ है। तो वाह, अच्छा, तो ये बताएं, लोगों की दिलचस्पी होती है बर्ड्स में? पाकिस्तान में तो बहुत शौक रखते हैं लोग बर्ड्स, बल्कि ज्यादा इसी में होती है, बर्ड्स में होती है, क्योंकि एक तो ये हाउस में आप आराम से कीप कर सकते हैं एज अ पेट। दूसरी ये कि बाहर के मुल्कों में तो खैर इनकी पर लाइसेंस वगैरह है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो और ये फिर बच्चों के लिए भी प्लेफुल एक अच्छी चीज है, फिर पाक जानवर है। ऐसे ज़ाहिर लोगों की दिलचस्पी होती है, लेकिन पिंजरे में लोग पालते हैं, छोटे छोटे पिंजरों में रखते हैं उनको, फिंचेस देखा है हमने। वैसे इसकी अहमियत कितनी है इकोसिस्टम के लिए, बर्ड्स का होना? और अब बड़ी बर्ड्स ऐसी भी देखी, डव वगैरह अब नजर नहीं आती है, बहुत कम है, कौवा हमें नजर कम आता है। तो ये चीजें, इन पर तरजीहात में होना कितना जरूरी है, लोगों को ये सोच आप कैसे देंगे? जी देखिए, अल्लाह ताला ने जो भी जानवर मखलूक दुनिया में उतारी है ना, उसका कोई ना कोई मकसद है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपने कव्वे का डिस्कस किया, एक बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है, बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे कबूतरों को खाना खिलाते हैं, तो जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको थोड़ा बहुत दाना दिया है, हम उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला खाना, चने की दाल, मसूर की दाल, पता नहीं क्या क्या चने उसको खिला रहे होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और जो एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आतिफ, हमने ये बात की अभी पिछले सेगमेंट में कि हाई राइजेस इतनी हो गई हैं पाकिस्तान, लाइक कराची स्पेशली हैज़ बिकम अ कॉन्क्रीट जंगल, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि दरख्त कटाए जा रहे हैं, दरख्त में बर्ड्स रहते हैं, ये सारे पैरट्स रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे हुकूमत से, या किससे गुजारिश करना चाहेंगे? ये तो सिर्फ कराची पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का ये हिस्सा है, लेकिन वो लोग किस तरह ओवरकम करते हैं कि वो अर्बन फॉरेस्ट बनाते हैं। इवन ये कि आपका जो अपने घर में टेरेस है 10 by 10, आप उसको भी अर्बन फॉरेस्ट बना सकती हैं, उसको भी आप मेंटेन कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जंगल कट गया तो हम वाइल्ड लाइफ को भी ख़त्म होने दें। तो ये तो असल में हर इंसान का इनिशिएटिव भी होना चाहिए कि आप अपने घर में जो भी फ्री स्पेस है वहाँ पे आप लगाएं। जब आप प्लांट करेंगे वाइल्ड लाइफ खुद ही आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, कितना एक्सपेंसिव होता है? बिल्कुल बताइए कितना, यानी एक्सपेंसिव है? अगर कोई शौक रखते हैं, ये यहाँ देख के लोग चाह रहे हैं कि जी हम मकाओ को रखें, महंगा ये शौक है, बड़ी देखभाल करनी पड़ती है? जी बिल्कुल। देखिए, दो किस्म के वो होते हैं एनिमल्स, एक एक्सोटिक एनिमल्स, एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं, और एक कमर्शियल बर्ड्स होते हैं। जैसे कॉकटेल, लव बर्ड, डव की आप बात करते हैं, वो कमर्शियल है, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। और वो कॉस्ट क्यों ज़्यादा नहीं होती? क्योंकि वो रीडली ब्रीड कर रहे होते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। ये जो हम यहाँ पे लाएं, ये एक्सोटिक पैरेट हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं और वेरी हार्ड टू ब्रीड होते हैं। इनकी एयर ही 100 प्लस होती है, तो इनको मैच्योरिटी आते आते भी टाइम लगता है, 20 साल 25 साल कॉमन है। तो मोस्टली जो ब्रीडर्स यहाँ पे ब्रीड करा रहे हैं सब लोकली पाकिस्तान की ब्रीड्स हैं, तो उनके वालिदैन ने वो सेटअप डाले और अब बच्चे उनका फल ले रहे हैं।
अच्छा, खाने पीने में क्या खाते हैं ये बाजरा और आयशा प्लांट कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इनके अपने फ्रूट्स सीड्स होते हैं, वो ये बड़े शौक से, जी सीड्स नट्स वगैरह और फ्रूट्स खा लेते हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन इनके फिर भी कुछ ऐसी डाइट होती है जिसको हमें ख्याल करना पड़ता है कि जो और ये सीजन वाइज जो है वो इनको, और ये बड़ी इनके बड़ी सेंसिटिव होते हैं, नखरालू होते हैं भाई, वेदर होते हैं इनके, बड़ी अदाएं होती हैं। बिल्कुल, इनका मेंटेनेंस अगर ना रखा जाए टेम्परेचर तो बीमार हो जाते हैं, और बीमार हो जाए तो उनको फिर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। यू नो, नोमी अंसारी जो हमारे डिजाइनर हैं फ्रेंड, उन्होंने अपने घर पे मकाओ रखे हुए, और उस मकाओ के लिए पूरा एक कमरा है जिसमें एसी चलता है, उसके अपने टाइमिंग्स है, तो इनकी एक बड़ी मेंटेनेंस होती है। एक हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम और दोस्त अपने ब्रेक तो दिलवाए ना मिट्टू से। मिट्टू से ब्रेक ऐसे तो नहीं बोलेगा। नई जगह है ना, नई जगह है, और इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने जो जिंदगी में सीख लिया ना, ये वही बोल रहे होते हैं। बेहतरीन है। अब क्या सीखा है, क्या चीज ये बहुत बोलता है, बोलवाए कोई चीज, मैं आपको करवाता हूँ। ये तो बहुत बातें करता है, 14-15 अल्फाज। आज ही बात करें, कोई बात नहीं, आज ब्रेक के बाद अच्छा जी, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर आवर यमी यमी पेरेंट्स अराउंड तुम्हारे साथ रहिए। माय गॉड, अब अगर सरवत तुमने आइंदा मुझसे कोई बात की तो फिर देख रहे हो, ये मेरा ये शाका है, ये शाका शाका फाइट कर लेगा। दिस इज टू अमेजिंग। हमारे पास स्नेक्स हैं, गेकोज हैं, रेप्टाइल्स हैं, डिफरेंट किस्म के लिजर्ड्स हैं, फ्रेंच मैस्टिफ भी है, और एक पग भी है, और हमारा कोई दिल नहीं चाह रहा कि इस स्टूडियो से ये लोग कहीं जाए। तो ये एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, ये कितने लोग रखते हैं। गेकोस तो मैंने बहुत देखा है, बच्चे बड़े वो होते हैं, और इसके कलर कितने खूबसूरत है। आगे लाओ। ये टर्कोइज वाला जो है, इज दिस अ कैमेलियन? इग्वाना। ओके, और ये 7 feet 7 feet तक ये होते हैं। आई रिमेम्बर बचपन में मैंने देखा और मैं भाग गई। लिजर्ड्स में नंबर 1 पेट हैं, लिजर्ड्स के नंबर 1। अच्छा, ये जो है इसको, और ये जो है, ये आपके पास जो इंडियन रॉक पाइथन है, पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, ये बर्मीज पाइथन है, ये इंपोर्टेड है, बर्मीज है, ठीक है, दोनों ये। हाँ, एक इसका एल्बाइनो है, वेरिएंट है, और एक हाउ वंडरफुल, नो वंडर इट्स लाइक व्हाइट। और ये जो हमारे डॉगीज हैं यहाँ पे, कितना क्यूट से। हाँ, ये डॉगी, अच्छा, फ्रांस, राइट। अच्छा, इसकी बहुत फेमिलियरिटी उस ब्रीड के भी साथ है। बुल टेरियर होते हैं जी, मैस्टिफ, बुलडॉग भी, हाँ, बुलडॉग्स की तरह है ना। और पग्स तो हमें पता है जी, पग्स बहुत ये तो सारे, बहुत ज्यादा हमने देखा है कि वो 3-4 पग्स लेके चल रही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पाइथन्स और ये जो स्नेक्स हैं, ये भी लोग बड़े शौक से रखते हैं। जिसकी तरह हम उतारते हैं, अवेयरनेस आ गई है, अब पाकिस्तान में काफी ग्रोइंग वो है एज अ पेट। इसकी बाहर के उसमें तो इसको पेट के तौर पर ये लोग करते हैं, यूरोप वगैरह में, राइट। पर पाकिस्तान में अब बहुत अवेयरनेस आ गई है, अवेयरनेस आ लोग गई है, रख रहे हैं, और पॉइजनस नहीं होते। पॉइजनस। अच्छा, बहुत दफा हमने बाहर की मुल्कों की जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो देखी है कि वो बच्चे को खा गए, पता ही नहीं चला कि कैसे खाए। तो बट ये उनका वो साइज नहीं है, देयर नॉट। असल में वो रेटिकुलेटेड पाइथन होते हैं, दे कैन ग्रो अप टू 26 फीट, राइट, ठीक है। लेकिन ये जैसे कैप्टिव बॉर्न होते हैं ना, वो वाइल्ड होते हैं। ये कैप्टिव बॉर्न ये बच्चों से ही हमारे हाथों में पले होते हैं, तो ये हमें सेंस करते हैं, समझते हैं, राइट। सेकंड, इनका फीडिंग प्रोटोकॉल हम अलग रखते हैं, हम इनको ऐसे वाइल्ड नहीं देते, क्योंकि ये तो रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये तो सिर्फ वो देखते हैं कि इंसान जिंदा है, या यानी वो थर्मल विजन इनको नजर आता है। बिल्कुल। तो हम इनका प्रोटोकॉल है, इनके कंटेनर्स हैं, उसी में फीड कराते हैं इनको। तो अभी ये कभी भी प्रे मूड इनका ऑन नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये चीज बड़ी प्रोटोकॉल जो आपने बात की है, क्योंकि देखिए कोई भी हम कोई कैट पालते हैं, डॉग पालते हैं, तो ऐसे ही बगैर किसी नॉलेज के, यानी कि पहले बेसिक बुनियादी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या, तो ये तो खास चीज है ना। उनको पालने से पहले क्या आप रिकमेंड करेंगे कि पहले जरा रिसर्च करें, देखें पहले? हाँ, डेफिनेटली देखें, ये तो हमारे लिए खास चीज़ है ना, दुनिया तो 100 साल से पाल रही है। तो सबसे बेहतरीन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि गूगल यूज़ करें, और उसका पूरे पहले कोई भी पेट लें, रेप्टाइल्स लें, कोई भी लें, आप उसको पहले
دیکھیں, اس کی کیس اسٹڈی ڈسکس کریں, بالکل کہ ان کا ریسرچ کریں اس پہ, ہاں ان کا ہیبیٹیٹ پرووائڈ کریں, اور ان کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے, رائٹ, ایون کہ ڈاگ کو بھی اگر میں اندھیرے میں بند کر دوں گا نا تو تھوڑے دنوں بعد یہ بھی اگریسو ہو جائے گا, اور اگر میں ان کو فیملی کے ساتھ انٹریکشن ان کی رکھوں گا تو یہ فرینڈلی ہے. ویسے اگر یہ ایگریسو ہے تو نہیں, لیکن اگر ہو جاتا ہے تو کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے, یعنی اگر ممکنہ طور پر اگر فین میسٹف کی بات کریں نا تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بائٹ فورس ہے نا وہ اس ڈاگ کی ہے, اور اس کے اگر یہ تیت دکھائیں گے تو یہ 2 انچ کے اس کے تیت ہیں. یعنی یہ ڈینجر کو, یعنی خطرے کو دیکھ کے پھر اس طریقے سے ڈاگ کی سینس یہ ہوتا ہے کہ ڈاگ رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن, اور کوئی اننون آدمی یا فرسٹ ٹائم آئے تو ڈاگ بارک کر کے آپ کو بتائے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, یہ جو ہے یہ ریڈ کر لیتے ہیں آپ کی انٹینشن, ایون انٹینشن کو یہ فوراً اپنے اونر کو بتائے گا بھونک کے, وہ سامنے بول رہا ہوگا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن جو دل میں اس کے ہوگا یہ صرف ڈاگ بتا سکے گا, انسان نہیں بتائے گا. ایک بک ہے جس کا نام ہے واٹ دا ڈاگ سا, یہ میں نے پڑھی, پوری بک جو ہے وہ ہے کہ لوگ کیسے ڈرتے ہیں کتوں سے اور یہ وہ, لیکن اینڈ والے چیپٹر میں وہ بتاتا ہے, وہ میکسیکن میجیشین کہتے ہیں اس کو, وہ ڈاگ ٹرینر ہے پوری دنیا میں, وہ کہتے ہیں کہ کتا کیا دیکھتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے, فیئر کیا ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ڈاگ کو جب آپ جن کے پاس یہ ہوتے ہیں تو ڈاگ سے آگے اگر اس کا ماسٹر جا رہا ہے اور ڈاگ پیچھے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ٹرین ڈاگ ہے, لیکن اگر ڈاگ ماسٹر کو لے کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرین نہیں ہے. ایسے اچھا, کیا ایک ایسی چیز آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے, بیکاز ہمارے پاس وقت کم ہے, کہ پیٹس رکھیں, بچوں کے لیے اچھے ہیں, کیا ایسی بینیفٹس بتائیں ذرا. جی دیکھیں, یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس گھر میں رہتے ہیں. اگر ڈاگس تو سب سے بہترین کمپینین ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اگر یہ والے ٹائپ کے رکھنے چاہیں, ریپٹائلز رکھ سکتے ہیں. ریپٹائلز تو نمبر 1 پیٹ ہیں دنیا کے, کیونکہ یہ ایک انکلوجر میں رہتے ہیں, رائٹ, یہ مہینے میں بھی آپ ان کو فیڈ نہیں کرائیں ڈزنٹ میٹر, اور کوئی نوائز نہیں ہے. طوطا رکھیں گے وہ چیخے گا, کتا بھونکے گا, کلیننگ ان کی مینٹیننس بھی بہت, یہ ریپٹائلز بہت ٹھیک ہے. تو اور یہ سارے دیکھنے کے لیے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہاں آئیں بچے آئے بھائی, یہ سب چیزیں آپ جو ہے دی وائلڈ لائف ایکسپیرینس سینٹر ناظم آباد میں ہمارا سینٹر ہے, وہاں آئیں, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس مور دین 1000 اینیمل ہیں اور سارے پیٹ ہیں. صحیح ہے, ایون کہ ہر چیز آپ اس کو استعمال, یعنی بچے ان کو ٹچ کر سکتے ہیں, ان کو فیل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ چائنیز ایلیگیٹر ہے, یہ ورلڈ اسمالسٹ ایلیگیٹر ہے, یہ میکسیمم بھی 6 فٹ تک ہی ہوتا ہے, بڑا ہی ڈوسائل ہوتا ہے. بھائی ہمیں تو آپ کے ادھر سینٹر آنا ہوگا, بٹ عاطف اور عائشہ اور آپ کی ٹیم کا اور ہمارے یہ ننے منے دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم ضرور اپنے بچوں کو اور سکولز کے جو فیلڈ ٹرپس ہوتی ہیں, بھائی اس کے ساتھ ذرا مکاؤ کو لے کے تو آئے نا, ذرا ہم کلوزنگ کر رہے ہیں نا اپنی. آپ نے بلایا ہم سب کو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں تک آپ لوگوں کی امیزنگ اینیمل رائٹس کی بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹرے ڈاگس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی. جی جی بالکل جی, کل نہیں, کل تو چھٹی ہے, تھینک گاڈ. منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی, منڈے کو ملاقات ہوگی نئے ویوز نیوز کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ. آج جس طرح ہمارے اسٹوڈیو میں یہ مہمان تھے, اتنے اچھے تو نہیں ہوں گے دوبارہ مہمان, لیکن ذرا مختلف مہمان ضرور ہوں گے. رائز اینڈ شائن سے زہیب اور ثروت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.